পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে মঙ্গলবার রাইমা ভ্যালিতে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে হরিপুর 33 কেবি থেকে বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথা 3 দলের হাজার হাজার কর্মী সমর্থকরা বিশাল এক র্যালির মাধ্যমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মাকে সাথে নিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে কবিগুরু স্কুল মাঠে জনসভায় মিলিত হয়। নির্বাচনী সভায় বিপ্লব কুমার দেব, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিজেপি ধলাই জেলা সভাপতি প্রতিরাম ত্রিপুরা, ত্রিপুরা মথার চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা, রাইমা ভ্যালি বিধানসভার 3 দলের সভাপতিদ্বয় প্রমুখ। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যসভার সাংসদ তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপির প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, জনজাতির মিলনস্থল ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরশ্রী ভূমির এই মিলনস্থল একে বদনাম কে করেছে? ভারতীয় জনতা পার্টি করেছে, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মালিক করেছে। এখানে কি ত্রিপুরার রাজ পরিবারের লোকেরা করেছে? মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মালিক করেছে। উনি তো আদরণ ত্রিপুরার উপকার থা, উনি তো ত্রিপুরাতে প্রথম কলেজ বানিয়েছেন, উনি তো ত্রিপুরার প্রথম স্কুল বানিয়েছেন, উনি তো প্রথমে ত্রিপুরাতে ইন্ডাস্ট্রি বানিয়েছেন, উনি তো প্রথমে ত্রিপুরাতে রাস্তা বানিয়েছেন। আর আগরতলাতে কমিউনিস্টরা 25 বছর ক্রমাগত রাজ করেছে। আগরতলাতে জল জমে যেত, কিন্তু ওই সময় মহারাজরা রাজপ্রসাদ তৈরি করেছে। রাজপ্রসাদে আজও জল জমে না। টেকনোলজি শিখো মহারাজদের কাছ থেকে কমিউনিস্টরা। আর শিখেই কি করবে? তোমরা তো সারা জীবন কাস্তুয়া তৈরি বানিয়েছো, এর বাইরে কি বানিয়েছো? এর বাইরে কি বানিয়েছে কমিউনিস্টরা? শুধু কাস্তুয়া তৈরি বানায়। এখন তো কাস্তুয়া তৈরি ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন মানিক সরকার, জিতেন চৌধুরী হাত চিহ্ন বানায়। এখন হাত চিহ্ন কিন্তু ছাপ দেয়। मराद मैं आपको बोलता हूँ, मानिक सरकार ने हाथ चिन्ह में छाप नहीं दिया। मैं मानिक सरकार को जानता हूँ, इन नोटा में वोट देकर आया, पक्का नोटा में वोट देकर आया। बेईमानी क्या है? मैं मानिक साहब को बोलता हूँ, दादा मैं आपको प्यार करता हूँ, 4 बार का मुख्यमंत्री थे। आप एक बार बता दीजिए त्रिपुरा के जनता को, आपने वोट कहाँ दिया? मैं जानना चाहता हूँ। त्रिपुरा जानना चाहते हैं 4 बार का मुख्यमंत्री, 25 वर्ष लगातार सरकार रहे आपका, আপনি ভোটটা করে দিয়েছেন আমি জানতাম চাই। আমার প্রাণ বাড়িয়ে দিতে একবার কোন ত্রিপুরাবাসী জানতে চায় যে আপনি ভোটটা হাত ছিল দিয়েছেন, আপনার নিজের মুখে একবার বলে দেন। আপনি তো ভুলিয়ে ভুলিয়ে বলেন महाराज मैं एक बार सुनना चाहता हूँ त्रिपुरावासियों का, किसने वोट दिया? क्योंकि ये हाथ चिन्ह के साथ लड़ाई कर करके, मर्डर कर करके, रेप कर करके, दंगा करा करा के मानिक बाबू चीफ मिनिस्टर बनते थे। आज वही मानिक बाबू हाथ चिन्ह में वोट दे रहे। ऐसे बड़ा ऐसे खराब जीवन और की होते पारे मित्रों? ऐसे खराब शास्त्री महाराजा की दिले महाराज बोले हम शास्त्री देंगे, हम उनको पनिशमेंट देंगे। महाराज पनिशमेंट हो चुका है। जाकर हाथ चिन्ह में वोट देकर आगे परिपुर का मेंबर, परिपुर का मेंबर हाथ चिन्ह में वोट देता है। सभी परिवारों को वृंदा करार भी हाथ चिन्ह में वोट देगा, महाराज प्रकाश करार भी हाथ चिन्ह में वोट देगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, गंडाछड़ा का जो भी कम्युनिस्ट अभी भी रह गया हो मेरे मित्रों, छोड़ दो, इसको डूंगर में डाल दो और निकल जाओ त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी के साथ मेरे बहन कृति सिंह देबबर्मा को पद्म फूल चिन्ह को लोटस में कमल में वोट लगाओ 26 तारीख को। और हर वोट कमल में होना चाहिए। कमल का वोट मोदी के पास जाता है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो त्रिपुरा है, मोदी है तो त्रिपुरा है, मोदी है तो जनजाति है, मोदी है तो जाति है, मोदी हो तो त्रिपुरा के लोगों का भविष्य। मेरे मित्रों 18 निर्वाचने सीपीएम শুনে নাও। 18 নির্বাচনে আমরা তোমাদের হাতু ভেঙেছিলাম। আর 24 নির্বাচনে মহারাজ साथ है, महाराज कुमार तोड़ के रख दूंगा सीपीएम के, उठने नहीं दूंगा। क्योंकि ये सीपीएम त्रिपुरा के लोगों को जाति जनजाति का दुश्मन है। मैं राजनीति के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। त्रिपुरा में जनजाति का कोई दुश्मन है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। और त्रिपुरा में जो अगरतला में बैठे हुए कांग्रेस का नेता है, ये तो आता ही नहीं गंडाछड़ा में, देखा कभी कांग्रेस आता है? कांग्रेस नहीं आता। कांग्रेस के गलती के कारण से सीपीएम आके बैठे हुए थे गंडाछड़ा में, क्योंकि कांग्रेस के लोग अगरतला से नहीं निकलेगा, वो हमारे गौरवपुरा में नहीं चल सकता है। 18 में
में नहीं जा सकता है, झूम चाशियों के पास पहुंच ही नहीं सकता है, हमारे गंगानगर में नहीं जा सकता है, हमारे रश्यवाड़ी में नहीं जा सकता है। उस कारण से क्या बोलेगा, क्षमाचरण बाबू आप ही देख लो, आप बना लो रीजनल पार्टी, आप ही बना लो, विजय अंकल आप ही बना लो, हम देखेंगे। एनसी वर्मा को बोलेगा आप ही बना लो, हम देखेंगे। किंतु महाराज व्यतिक्रम है, महाराज को सीपीएम ने व कांग्रेस ने नहीं बोल पाया, वो हम देखेंगे। महाराज ने बोला हम आप लोगों को देख लेंगे क्योंकि आप लोगों ने त्रिपुरा के जनजाति के साथ अन्याय किया है मेरे मित्रों। इसलिए मेरे साथ महाराज का दोस्ती हुआ। दोस्ती ऐसा नहीं होता, जब सोच मिलता है, दिल मिलता है, तब दोस्ती होता है। दोस्ती तभी होता है जब दिल और दिमाग मिलता है, और दिल और दिमाग नरेंद्र भाई मोदी के साथ भी मिलता है, अमित भाई साहब के साथ भी मिलता है, गंडासरा में भी मिलता है, रश्यवाड़ी में भी मिलता है, कांचनपुर में भी मिलता है, धर्मनगर में मिलता है, शाहपुर में भी मिलता है। महाराज शाहपुर का नाम लिया तो दूर होता है, वहां भी दिल हम दोनों का मिला था, किंतु जितेंद्र चौधरी ने महाराज को पट्टी पड़ा के एमएलए बन गया, और एमएलए बनने के बाद महाराज को गाली देता है। ऐसा बेईमान जितेंद्र चौधरी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है, जिसको दम नहीं है कोई भी एसटीसी में लड़ाई करने की, वो नहीं लड़ सकता है गंडासरा में, वो नहीं लड़ सकता है मंदिर में, वो नहीं लड़ सकता है शिमला में, नहीं लड़ सकता है टाकागढ़ में, विप्लव के टाकागढ़ में जो लड़ सकता है, हम मंदिर में लड़ सकते हैं, हिम्मत करते हैं। मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं ना, मेरे से मंदिर की सीट है, टाकागढ़ की सीट है, देख लो जितेंद्र चौधरी, विप्लव को सबसे ज्यादा मार्जिन मेरे भाई गुरदीप किशोर मानिक का, जगदीप बाबू, ये लोग बैठे हैं, देखना शिमला का रिजल्ट कैसा आता है। टाकागढ़ में देखना जमानत जब्त करके वहां से विप्लव कर निकलेगा, मोदी निकलेगा, क्योंकि हम लोग बेईमान नहीं है। काओ को जो पानिशमेंट दीते है, काओ के जो अपमान करते है, तो बोलते गंडासरा पार्टी दाओ, काला पानी के पार्टी दाओ, बदनाम करे रखे लोग कम्युनिस्ट है। सुंदर गंडासरावासी के, ये चाकमा हो, त्रिपुरी हो, रियांग हो, बंगाली हो, बौद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, किंतु एक का कथा बोलबो मेरे मित्र, सचमुच हम दिल से बोली, सचमुच गंडासरा सुंदर है, सचमुच सुंदर। আপনাদের মানসিকতার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল কমিউনিস্টরা যে আপনারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, আপনারা আগরতলার থেকে অনেক দূরে, আপনাদের রাস্তাঘাট কোনোদিন ভালো হবে না, মেনে নিয়েছিল। গন্ডাছড়া মানে রাস্তা ভাঙাচোরা হতে হবে, গন্ডাছড়া মানে মন্দির ঘাট থেকে যে রোডটা যেটা আমি শুরু করেছি এমন রোড হতে পারবে না। গন্ডাছড়া মানে নারকেলগঞ্জে হেলিকপ্টার আসতে পারবে না, গন্ডাছড়া মানে নারকেলগঞ্জে গাড়ি যেতে পারবে না, গন্ডাছড়া মানে নারকেলগঞ্জে টুরিস্টের জন্য লগ হাট হতে পারবে না। মেরে মিত্র, সব কমিউনিস্টের দেওয়া।